Jai Hind everyone. I am Sakshi Sisode, member and representative of Competitive Exam Cell. And I am Suhani Sharma. Today, I feel honored for being host of this event. The tricolor waves of high above us, telling the story of sacrifice and glory. Let our hearts beat as one in pride and unity. Now, I request everyone to stand for National Anthem. माता की जय। वंदे मातरम। Okay, so as I start this event, I would like to address and say if few kilometers this side or east I would have been born, तो क्या हुआ होता। एक ग्लास पानी के लिए लंबी लाइन में खड़ी हुई होती मैं आज भी, या फिर वहाँ के लड़कियों की तरह छुप छुप कर पढ़ रही होती, या मुझे जो बात सही लग रही होती, जो मुझे बोलना आता, वो बोलने के लिए मैं घबराती 100 बार सोचती, लेकिन नहीं, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ भारत में। इसे मैं अपना खुश नसीब समझती हूँ, और ये बोलने की हिम्मत आज मुझे इसलिए मिली है क्योंकि हमारे कुछ वीर स्वतंत्र वीर सेनानियों ने एक आज़ादी का सपना देखा था। वो सपने के लिए किसी ने काला पाने की सज़ा झेली, किसी ने अपनी जवानी जेल के दीवारों के पीछे गुजारी, और किसी ने हंसी खुशी फांसी ले ली। 15 अगस्त 1947 की सुबह का सूरज वही था, लेकिन हवा में एक नई खुशबू थी, आज़ादी की खुशबू। So today, I am not just wishing you Happy Independence Day, but reminding all of us that this freedom is our shared responsibility. We must value it, not just today, but every single day. Remembering their sacrifices, understanding what they stood for, and living by it in our actions, decisions, and thoughts. This is how we truly honor them. And on this Independence Day, as we remember that defense of our nation does not end at the borders. It continues in every field. Just as freedom fighters and soldiers, our engineers can guard it with innovation, technology, and leadership. That's where Competitive Exam Cell steps in. CEC is a platform preparing us to serve nation not just as an engineer, but as a future officer, administrator, and leader. Competitive Exam Cell is a student-driven club in which we daily take the daily learning sessions 1 hour after college, in which we cover multiple subjects from Monday to Saturday. Monday is general awareness, Tuesday is current affairs, Wednesday is aptitude, Thursday reasoning, Friday English, and on Saturday we have sports in which we play various sports. And we also take various events like group discussion, debate. One of the activities today on Independence Day on theme based कर्म कौशल्य कर्तव्य। कर्म कौशल्य मतलब अपने काम को स्किल्स और डेडिकेशन के साथ करना, और कर्तव्य मतलब अपने फ़र्ज़ को जिम्मेदारी से निभाना। आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपने कर्म को एक्सेलेंस और कर्तव्य में पूरा समर्पण दिखाया। आज हमारा यह फ़र्ज़ है कि हम भी अपने ड्यूटीज़ पूरे करके देश को आगे बढ़ाएं। जब उसने आगे बढ़ाने की बात की है, तो जब हम आगे ले जाने की बात करते हैं तो हम उन्हें नहीं भूल सकते जिन्होंने हमेशा हमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया है। हमारे फैकल्टी एडवाइज़र अखिल सर,
Sir, I request you to say a few words. कर्म, कौशल्य, कर्तव्य. It's very good to begin my talk with these three very important words. Very good morning to all. Wish you all a very happy Independence Day. Jai Hind. Last week, the Central Secretariat in New Delhi opened a new office space. What is the name of that building? There is, earlier it used to be Rajpath, now it is Kartavya Path, right? Two of our students have been a part of the Republic Day parade on the Kartavya Path. So there is the Raisina Hill, where is the Rashtrapati Bhavan. Straight road comes down. It ends at the National War Memorial, India Gate. Behind India Gate, there is a National War Memorial. On either side, the government is building new offices. Earlier offices were named after either the ministry, say the Krishi Bhavan, so on and so forth, or after freedom fighters, Shastri Bhavan. Now the new office building that has been built, it will house, I think, Home Ministry and other couple of ministries. It is called Kartavya Bhavan. Words carry a lot of importance if we understand them. आज हम बोल रहे हैं ना, आज़ादी आज़ादी, फ्रीडम, स्वतंत्रता दिवस. बट अगर हमको स्वतंत्रता का मतलब क्या है, ये जितनी गहराई में हम उसको जानेंगे, उतना हमें उस दिन से, उस क्षण से हमारा रिश्ता गहरा होगा. She started with a very important point. If I was born few kilometers this side or that side, just to put it in a more qualified way, you were probably born after the year 2000, right? If you were born maybe 10 years before, let us say third year students, you were born in which year? 2005. If you were born 10 years before in 1995. That was an era. An era was ending. It was of the coalition governments in India. If you were born in 1985, लाइसेंस राज था. आपको घर बनाना है तो सीमेंट जो चाहिए उसके लिए 2 महीने 3 महीने वेटिंग था. 3 months you have to wait for getting cement to build your own house. वो भी तब मिलता जब you will have to go to the person, MP, MLA, उनका चिट्ठी के ऊपर मिलता था. मोबाइल फोन कनेक्शन तो दूर की बात है, लैंडलाइन कनेक्शन यूज्ड टू टेक 1 year. If you go back 10 years more, 1975, emergency, right? 1975 में there were leaders like, student leaders like Arun Jaitley, जेल्ड. हॉस्टल में एक मीटिंग कर ली, उठा के जेल में डाल दी. राजनाथ सिंह जेल. लालू प्रसाद यादव वॉज इन जेल. नीतीश कुमार, all these crop of young leaders who are now old, they were, go back to 65,
war. Go back to 55. है ना, कहीं तो होगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. महाराष्ट्र था क्या 55 में? Go back to 45. World War had just ended. No idea what's going to happen. तो अभी हमने जो किया है ना, हम तो सिर्फ 70 साल पीछे गए ना. सो आप जब बोलते हो कि हम यहाँ पैदा हुए या वहाँ, आज आपको लगता होगा कि आप तो 2005 में बॉर्न हुए थे. उल्टा देखो, 2015 में जिनका जन्म हुआ है, those who are 10 years old today, don't you think they are more smart than you are? They have more freedom than you have. They have more independence than you have. The reason I told you this is, today, as a part of our activities of competitive exam cell, we celebrate certain days. तो हमें उस दिन को क्यों सेलिब्रेट करना है, ये जानने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं टाइम. द स्केल ऑफ टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड. जिसे टाइम समझ में आ गया, द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ टाइम, दैट पर्सन can now come to the first word of today's theme, that is karma. Any action is karma. Inaction is also karma. What you do is your karma. What happens to you is also the karma. Even if you don't do anything and let life happen to you, उसे भी कर्म कहते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए? What happens but the moment I put in 10 different things which I have derived on basis of my my own understanding of things, that is कर्तव्य. कुछ तो रीजन होगा कि एक टीनेजर goes to a place called रायरेश्वर. आपके भी दोस्त लोग जाते होंगे सह्याद्री. हम लोग जाते हैं, फोटो खींचते हैं, मैगी खाते हैं, राइट? सो अ टीनेजर goes there and he declares his कर्तव्य. The teenager was just a teenager like anybody. But he decided what his karma is going to be. That made him Chhatrapati Shivaji Maharaj. So actions are there. The moment I put ideals on my action, what I should do, that becomes the kartavya. And to execute your kartavya with the best possible thing, best possible environment, best possible results, that is possible through kaushal, skill. सोचने वाली बात है, हमारे पास पेट्रियोटिज्म कम नहीं है. We are all very patriotic, right? But tomorrow, if this particular room is attacked by an enemy state, we are all ready to lay down our lives for the country. But what will matter? How skilled we are in defending our country. Karma is the reality, kartavya is the decision, and kaushalya is your skill that you build so that
आप कर्तव्य पूरा कर सको, उससे आपका कर्म पूरा होगा। ये जो लिंकिंग है ना कौशल्य का, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इट एक्चुअली गेव राइज टू अ वॉर पॉलिसी. इफ आई टेक आइडियल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, थिंक अबाउट इट. गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स. वाई? मैंने बात की थी ना एनवायरमेंट की. ओके, अफजल खान में बी 10 times greater, bigger, whatever than I am, but I have skills to outmaneuver the greatest general of Adil Shahi for that matter. ये सारी चीजों का कनेक्शन ऐसे होता है. That's why Sri Krishna has said, yoga karmasu kaushalam. What is yoga? It is doing your work with skill. If you don't do your work with skill, you won't be happy. चाय बनानी है, बढ़िया चाय जो बनाएगा, वो चाय बना के जब हम पीते तो अच्छा लगता है. उसको स्किल नहीं रहा, उसमें मजा नहीं. मैं आपको इस चीज़ों की इंपॉर्टेंस इसीलिए बोल रहा हूँ, बिकॉज इन द इंट्रोडक्शन यू हैव सेड वेरी नाइसली व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ सीईसी. व्हाट इज द रेलेवेंस? आज हम यहाँ पे मिले हैं, यू विल बी हैविंग अ डिस्कशन ऑन फ्रीडम फाइटर्स एटसेट्रा. आई हैव टोल्ड दिस वेरी एन नंबर ऑफ टाइम्स. अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इतिहास की पढ़ाई कर रहे हो, तो उसे वर्तमान पर्सपेक्टिव में रख के पढ़ो. इफ यू आर रीडिंग हिस्ट्री, यू रीड इट, यू ऑब्जर्व इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रेजेंट. Only then you will learn. If you do not connect it to present, you will not learn. PL-15 is the missile that China gave to Pakistan, right? Operation Sindoor. Let's talk about the freshest part of history. Yesterday only they have declared the gallantry award names and all, right? Pakistan had F-16. Then there was PL-15, the missile. They had J-10C, JF-17. Good Air Force. And prior to Operation Sindoor, if you listen to any podcast, they would say that the Pakistani Air Force per se is kind of better equipped than India, in the Indian Air Force. Okay? It used to be the narrative. The threat to Indian citizens before Operation Sindoor and during Operation Sindoor also was less from the Pakistani Air Force when it comes to scale, but more from the drones. We forget that. Because India had a good air defense system. Okay, there is S-400, there is an Indian Air Force were in a defensive mode. Yes, we detected a lot of those things. But जो chaos होगा ना, या फिर जो chaos होता, वो कहाँ होता? We have seen what the same country that manufactures those drones, Turkey, gave those drones to Ukraine, and we have seen what havoc those drones had on a military superpower like Russia. What came to India's aid? The unsung heroes is indigenous air defense capabilities. India was like an onion. There are layers and layers and layers and layers and layers. ये कोई भी लेयर, इसमें 2 लेयर इंपोर्टेड हो सकते, लेकिन बाकी सारे लेयर्स इंडियन ही थे. Other layers were Indian. If you go back and just check it up, so many Indian students
worked on something called drones, built startups, supplied to defense, and now these companies are major. Imagine, think about it from this perspective. Indian Army, I think every platoon will have one drone operator and a one drone from now on. Maybe हर यूनिट का तो एक ड्रोन होगा ही. Every unit will now have a drone specialist. Why? Because infantry, I am not even talking about air defense, I am talking about infantry unit. जब गेम चेंज होता है, अगर आपके पास कुशलता है, आपके पास कौशल्य है, तो आपको आपके कर्तव्य को खत्म करने या फिर आप कर्तव्य आपकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए आपको उसका हेल्प होता है. दिस इज द कनेक्शन. This, I know I have taken a little bit of time more than what was probably given for me. I am sorry for that. But the three basic things that you have taken, the themes, why not look at Indian history from the skills perspective? We all know Kakori conspiracy, right? What was the favorite weapon of the revolutionaries? बंदूक थी, मालूम है. They loved a pistol. कौन सी पिस्टल थी वो? अगर आप इसकी बारे में नहीं सोचेंगे तो ठीक है. Hindustan Republic Association, Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru, this, that, everything is accepted. But now is the time that as an engineer, आपका भी कर्तव्य है ना देश के लिए कुछ करने का. तो मैं यही पूछूंगा आपसे, आपके पास क्या कौशल्य है? आप बोलेंगे सर हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, हम सिविल इंजीनियर है, राइट? तो मैं बोलूँगा अच्छा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो तो फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के बारे में आपको क्या पता है? कौशल्य और कर्तव्य को जिस वक्त आप इंटरलिंक करने लग जाओगे, आपका नजरिया बदलेगा. दिस इज द वे यू शुड लुक. बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड सीईसी, कर्म था ये था कि सर हमको गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने हैं. कर्तव्य ढूंढ के निकाले हमने विजन एंड मिशन, सर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इनकलकेट करने. लेकिन अगर आपका स्किल यूज करके डीएलएस ना करें, आपके स्किल्स को लगा के टाइम टेबल ना बनाए, ग्रुप स्टडीज ना करें, कि ऐसे आप लोगों को मालूम होगा नॉलेज स्किल एटीट्यूड नहीं है, तो एक ओरिएंटेशन फिर से होगा इस पे. इफ दैट इज द केस, तो आपको समझेगा, आपको समझ में आएगा ये बात कि why we are going on the path of our kartavya using skills. The moment you grasp those skills, everything will change. So today when you stand here and you pay homage to the freedom fighters, those who made this country, those who gave their lives for this country, I want all of you to look at it from one more different perspective. कि exactly क्या किया होगा. The moment you do that, you may be building weapons. You may be a civil engineer who comes up with let us say, a building solution for tents at Siachen Glacier. You may come up with if you are doing civil engineering, you will go into structural engineering. सर हमने इस तरीके का reinforcement तैयार किया है
कि इसके अंदर बैलिस्टिक इम्पैक्ट से बचा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो अभी the more I say is less, because the speed with which electronics is going in this country, in this world, is terrific. Computer, IT, how are you going to use it? You just come up with solutions. तो आपके लेक्चर्स भी इंटरेस्टिंग हो जाएंगे, बिकॉज हमारे कर्तव्य हमें ध्यान में नहीं रहता। हम सब कुछ होने के बाद शाम को 4 बजे हमारा कर्तव्य है देश के लिए कुछ करना है। नहीं, आपका कर्तव्य सुबह 8:30 बजे शुरू होता है, 9 बजे शुरू होता है। जब आप क्लास में जाते हो, कोई AI पढ़ा रहा है, कोई हैकिंग पढ़ा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग क्या होगा। एंड इट इज नॉट जस्ट डिफेंस, इट इज ऑल्सो बिल्डिंग ऑफ द कंट्री। डोंट लुक एट इट जस्ट फ्रॉम द डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। डिफेंडिंग हिज कंट्री इज वेरी गुड, राइट? You make the country so strong enough, nobody dares to attack you. That is even better. Give an agricultural solution which will increase the productivity of Indian agriculture 2 times. 100% productivity increase. जिस दिन ये हो गया ना, you are in a league where people are outside your home begging. People मतलब countries, home मतलब India. They will come to you. यार जरा हेल्प करना। So patriotism comes in 100 different forms. Grab these 3 words, think about it, and let that discussion go. Conclusion should always go towards, as I said, yoga, karma, sukhaushalam. Right? Very happy to see all of you once again. Some seniors are wondering, sir, you don't come to college very often. But then I am also happy to see that the charts have been updated. Very good. That a new activity to-do list for this academic year has been typed, printed, and it is the first thing you see when you enter this room. Very good. Arrangements have been made in a better way. Very good. These are all evidences that a system is running on its own. कौशल्य है, कौशल्य है तो कर्तव्य हो जाएगा। ठीक है? Once again, wish you all a very happy Independence Day. Enjoy the freedom. Thank you. Jai Hind. Now, let's begin with our activity, which is more of a group discussion. Our members bring role of our respected freedom fighters and express their thoughts on Azadi. I call upon group 1. Jai Hind everyone. Jai Hind. So today is an Independence Day, so we have created a small act. Myself, Shravani Khande, Pallavi, Omkar Dada, Siddharth, and Tejas Dada. We are performing a small act named as आज़ादी का सपना पहले से सोचा होगा। The 4 freedom fighters are seated. Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal are sitting in a rectangular facing the audience, and they are speaking as they had met after just a years. याद है जब हमने आज़ादी के सपने देखे थे? मैं चाहता था एक ऐसा भारत जो अपनी संस्कृति पर गर्व करे, अपने आर्थिक निर्णय खुद ले और जहां हर नागरिक अपनी शक्ति से खड़ा हो। बिल्कुल बिपिन जी, और मैं चाहता था एक ऐसा भारत जहां प्रशासन ईमानदार हो, नेता सेवा को अपना धर्म समझे। लेकिन आज आप बताओ, क्या ऐसा हो पा रहा है? नहीं लाला जी, अंग्रेज तो चले गए, पर अन्याय, असमानता और भ्रष्टाचार आज भी अपने रंग बदल कर जी रहा है। और लोग समझते हैं कि आज़ादी एक दिन में मिल जाती है। नहीं, आज़ादी जीती जाती है अपने कर्तव्य को निभाकर। मैं पूछता हूँ आज के युवा को, क्या तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो, या सिर्फ सोशल मीडिया पर देशभक्ति की कुछ पोस्ट डालकर समझते हो कि अपना काम, अपना कर्तव्य हो गया? हाथ गीले होते तो मिट्टी की खुशबू आती है, और मिट्टी की खुशबू से देश का प्यार। पर आज के युवाओं के हाथ में सिर्फ फ़ोन की स्क्रीन्स और हाथ
रील स्क्रॉल करने में यूज होते हैं। तुम सब, हाँ तुम सब, आज़ादी का हमने बीज बोया था, पर उसे पालना, पोषना और बढ़ाना ये तुम्हारी कर्तव्य है। और याद रखना, तलवारों से हमने अंग्रेजों को हराया था, लेकिन ये नई लड़ाई है जो हमें सोच से जीतनी है। सोच जो अपनी विरासत पर गर्व करे, और हाँ, विदेश की अच्छाई अपनानी चाहिए, पर अपनी पहचान उस अच्छाई की वजह से भूलनी भी नहीं चाहिए। मैं याद दिलाता हूँ, साइमन कमीशन के खिलाफ मैंने अपना बलिदान इसलिए दिया था ताकि भारत अपना कानून खुद बनाए। आज हम आज़ाद हैं, पर क्या कानून सच में गरीब तक पहुँच रहा है? कानून तब तक काम नहीं करेगा जब तक इंसान अपना दिल साफ नहीं रखेगा। सच्ची देशभक्ति नारे लगाने में नहीं, काम करने में है। और जब तक एक भी इंसान भूखा सो रहा है, एक भी युवा बेरोजगार है, एक भी किसान दुखी है, हम अपने सपनों को अधूरा मानेंगे। हाँ, तरक्की हुई है, विज्ञान आगे बढ़ा है, शिक्षा भी फैली है और इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजीज भी बढ़े हैं, लेकिन इससे भारत की मातृभूमि की पहचान नहीं बनती है। सिर्फ वो बनती है उसके सिर्फ चरित्र से। और चरित्र तब बनता है जब ईमानदारी और एकता दोनों हो। अगर तुम्हारे अंदर न्याय के लिए गुस्सा नहीं, गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं, तो आज़ादी का क्या मतलब? आज़ादी का मजा तब है जब हर नागरिक अपने देश के लिए कुछ ना कुछ तो करे, छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता। भगत, तुम कह रहे थे कि लोग कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मैं मानता हूँ लोग कर रहे हैं, बस उनको एक अच्छी दिशा दिखाने की जरूरत है। हाँ लाला जी, मैं भी जानता हूँ चिंगारी तो है, बस उसे भड़काना बाकी है। और ये चिंगारी तब भड़केगी जब उन्हें अपने इतिहास के बारे में, अपने बलिदानों के बारे में और अपनी कहानियों के बारे में पता चलेगा। हमारी कहानी एक मिसाल है, और मिसाल कभी पुरानी नहीं होती। भारत आजाद है, लेकिन इसे हमारे सपनों का भारत बनाना तुम्हारे हाथों में है। और इस बार ये लड़ाई तलवारों से नहीं, सोच से जीतनी है। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद। दोस्तों, आपने सुना, ये है हमारी वीर स्वतंत्र सेना, जिन्होंने अपनी जान तक इस मिट्टी के लिए दे दी। उन्होंने एक ऐसा भारत सोचा था जहां आज़ादी, एकता, न्याय और समाधान से भरा होगा। आज हम उस रास्ते पर हैं। हाँ, चिंताएं हैं, लेकिन हमारे पास आज़ादी है। हमारे पास वो आज़ादी है जिनके लिए उन्होंने खून बहाया। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि उस आज़ादी को सिर्फ महसूस ना करके, बल्कि अपने कर्मों से बना जाए। हमारे अंदर भगत सिंह का जोश, आज़ाद की शान, लाला जी की देशभक्ति भरा दिल, बिपिन बाबू का आत्मनिर्भर भारत के सपने होने चाहिए। आज हम सब मिलकर प्रतिज्ञा लेते हैं, हम अपने भारत को उनके सपनों का भारत बनाए। जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम। चलो फिर से वो नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला याद कर ले। नाउ आई कॉल अपॉन श्रेया टू डिलीवर हर स्पीच। So first of all, happy Independence Day everyone. Have you ever wondered what is true measures of freedom? Is it counted in years since 1947 or in the actions we take every single day? So can a nation remain strong if the citizens forget their skills? And can independence survive if we neglect our duties? Those are not just questions of histories. Those are questions for you and me here and now. So, because the freedom, my friends, is not something we inherited. It's something we must protect and enrich. Respected teachers, guests, and my dear friends, on this glorious day, the Tiranga flutters in the sky. We celebrate the courage and brought us independent, and we reflect on the responsibility and that sustain it. A theme, karma, kaushalya, kartavya gives us the path. So let's begin with the Bhagavad Gita. Karmane varidhikite. Sorry, 1 second please. हाँ, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा
ते संगोचमकर्मी. You have the rights to action alone, not to its fruits. Let not fruit of action be your motive, nor let your attachments to inactive. This verse reminds us karma or actions defines us. For us today, karma means working with honesty, discipline, and integrity in whatever roles we gives us, be it student, professional, or citizen. Next comes Kaushalya, skills. Swami Vivekananda once said, "We want the education by which character is formed, strength is increased, the intellect is expanded, and by which we can stand our own feet." In our Shastras, it is said that Dakshaha karyeshu kaushalya sadhate sadhu karyavan. One who is skillful in work accomplishes it nobly. Finally, kartavya, duty. Ramayana teaches us that Maryada Purushottam, Sri Ram, placed duty above personal comfort. Even in Mahabharata, Yudhishthira is described as Dharmena yaha pratishtita sa eva balavana nrupa. He who established the duty of duty and righteousness in truly powerful. So this event is not just for us. It is tribute, a dedication to our brave souls who fought for this freedom. Every flag that flies, every song we sing, every cheer we raise today is offered in gratitude to freedom fighters, known and unknown, who has courage made this day possible. So thanks once again to that freedom fighters who fought for us, and let's begin this event once again, and Jai Hind. That speech really connected us with theme as well as आज़ादी. बलिदानों की इस धरती पर जौहर हुआ करते हैं, यहीं पर सरोवर से मान सरोवर हुआ करते हैं. शहादत से देशभक्त याद ही नहीं किए जाते, ऐसे नायाब रतन देश की धरोहर हुआ करते हैं. फर्दर आई कॉल अपॉन ग्रुप 2 फॉर नेक्स्ट ग्रुप डिस्कशन. प्रस्तुत सभी जनों को मेरा सुप्रभात. आज इस पावन अवसर पर हम एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं. मैं पायल रौनियार, श्रेया, केदार, करण और तेजस. हमारे नाटक का नाम है आज़ादी का भारत विकसित भारत तक कैसे ले जाए. तो ये दृश्य आज़ादी की ठीक सुबह का है, जब 4 महान फ्रीडम फाइटर्स आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि आज़ादी का भारत कैसा होगा. तो चलिए सुनते हैं और देखते हैं. मैं डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर. जय हिंद. मैं मौलाना आज़ाद. जय हिंद. मैं लाल बहादुर शास्त्री. जय हिंद. मैं पंडित नेहरू. साथियों, 15 अगस्त 1947 ये एक कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि हजारों शहीदों के लहू से लिखा हुआ इतिहास है. पर हमें यह याद रखना चाहिए कि आज़ादी एक मंजिल नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है. तो हमें ये तय करना है कि आगे हमारा भारत कैसे बनाए. नेहरू जी, मैं स्पष्ट कहूँगा, जब तक समाज में समानता नहीं होगी तब तक यह आज़ादी अधूरी है. राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक स्वतंत्रता भी ज़रूरी है. मेरा विश्वास है कि कानून के शासन के बिना कोई भी देश सभ्य नहीं बन सकता. मैं ऐसा संविधान बनाऊंगा जिसमें हर नागरिक अपने अधिकारों के साथ गर्व से जी सके. डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही है, लेकिन याद रखिए शिक्षा के बिना स्वतंत्र केवल एक नाम है. अगर भारत को महान बनाना है तो शिक्षा का दीपक हर गांव, हर घर तक पहुंचाना होगा. मैं चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य हो. महिलाओं को शिक्षा के बारे में अधिकार समान मिले. हमारे युवा विज्ञान, संस्कृति और खेल में दुनिया को दिशा दिखाए. इसके लिए हमें IITs, विश्वविद्यालय, साहित्य, कला एवं खेल के राष्ट्रीय संस्थानें खुलनी होगी. मौलाना साहब, आपकी बात सुनकर दिल में उम्मीद जगती है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि इस उम्मीद को ताकत कौन देगा. हमारे जवान और हमारे किसान. अगर किसान भूखा रहेगा तो कोई भी योजना सफल नहीं होगी, और कोई जवान कमजोर रहेगा तो कोई सीमा सुरक्षित नहीं रहेगी. इसलिए मेरा नारा है, जय जवान
जय किसान। हमें खेतों में उत्पादन बढ़ाना होगा, सिंचाई की योजनाएं बनानी होगी और हमारी सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करना होगा। बिल्कुल, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें उद्योग और विज्ञान में बड़ी छलांग लगानी पड़ेगी। हम पंचवर्षीय की योजनाओं से कारखाने, बिजली घर, बांध और सड़क का जाल भारत भर में बिछाएंगे और हम दुनिया से कह देंगे कि भारत किसी का पिछलग्गू नहीं है। हमारी गुटनिरपेक्ष नेतृत्व की वजह से हम बता देंगे कि भारत पूर्व का नहीं है, ना ही पश्चिम का, भारत केवल भारत का है। लेकिन ध्यान रहिए नेहरू जी, अगर जागतिक भेदभाव और असमानता बनी रही तो विकास अधूरा रह जाएगा। संविधान में आरक्षण इसलिए है क्योंकि वंचित लोग भी आगे बढ़ पाए और शिक्षा और नौकरियों में समान अधिकार पाए। यह सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की आत्मा है। आरक्षण से अवसर मिलेगा और शिक्षा से सोच बदलेगी। मेरा सपना है कि कल का भारत केवल किताबें में न हो बल्कि सड़कों पर, खेतों पर, कारखानों में और दिलों में महान हो। बात तो सही है मौलाना साहब, पर हमें यह भी याद रखना होगा कि भ्रष्टाचार और लापरवाही यह दो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर नेता ईमानदार रहेंगे तो जनता भी विश्वास करेगी और मेरा विश्वास है कि अगर किसान और जवान दोनों मजबूत होंगे तो दुनिया की कोई ताकत अपने देश को झुका नहीं सकती। हाँ, और लोकतंत्र की जड़ें हमें और गहरी करनी पड़ेगी। संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका में संतुलन और न्यायबद्धता लानी पड़ेगी। भारत ऐसा राष्ट्र बनेगा जो कि धर्मनिरपेक्ष व आधुनिक होगा। यह हमारी पहचान होगी। साथियों, संविधान सिर्फ कागज पर ना बन के हर नागरिक के दिलों में रहे। यह भारत सच में स्वतंत्र कहलाएगा। मेरा सपना है कि भारत ज्ञान और संस्कृति की मशाल लेकर दुनिया को रोशनी दिखाए। और मेरा सपना यह है कि हर खेत हरा भरा हो, हर सीमा सुरक्षित हो और हर भारतीय आत्मनिर्भर बने। और मेरा सपना यह है कि भारत दुनिया के मानचित्र पर शांति, प्रगति और न्याय का प्रतीक बने। जय हिंद। तो साथियों, अभी आपने 4 महान नेताओं की आवाजें सुनी। नेहरू जी का सपना, अंबेडकर जी का न्याय, मौलाना आजाद की शिक्षा और शास्त्री जी का जोश। ये चारों सिर्फ अतीत की कहानियां नहीं हैं, ये चारों हमारे आज के कंधों पर रखी गई जिम्मेदारियां हैं। लेकिन आज का भारत की सच्चाई से जूझ रहा है। भ्रष्टाचार अब भी है, असमानता अब भी है, सीमाओं पर खतरे अब भी हैं और किसानों की पीड़ा अब भी है। तो सवाल यह है, क्या हम सिर्फ तालियां बजाएंगे? क्या हम सिर्फ यादगार दिन मनाएंगे? या हम सब उठकर कहेंगे अब हमारी बारी है? हम वो पीढ़ी हैं जो सोशल मीडिया पर आवाज उठाती हैं, टेक्नोलॉजी से बदलाव लाती हैं और अगर ठान लें तो दुनिया का नक्शा बदल सकती हैं। हम अम्बेडकर जी का अधूरा सपना पूरा करेंगे। हम भारतीयों को बराबरी का अधिकार दिलाएंगे। हम मौलाना आजाद जी की मशाल लेकर हर गली में शिक्षा की रोशनी फैलाएंगे। हम शास्त्री जी की किसानों को ताकत देंगे और जवानों के लिए ढाल बनेंगे। और हम नेहरू जी की तरह दुनिया के सामने सीना ठोक कर कहेंगे, भारत किसी से कम नहीं। हम वो युवा हैं जो सिर झुकाने के लिए पैदा नहीं हुए। हम वो युवा हैं जो इतिहास को फिर से सुनहरा लिखेंगे। और हम कसम खाते हैं अपने शहीदों की लहू की हर एक बूंद का मान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। Through this group discussion, it felt as if the freedom fighters themselves were speaking to us, and their message truly reached our hearts. Now I call upon Omkar Dada to express his thoughts through poetry. जय हिंद एवरीवन। थोड़ा लिखा था उनके ऊपर, अभी लिखना उनके ऊपर कमी पड़ता है, तो प्रेजेंट करता हूँ भाई। एक समय था जब भारत माता की सांसें भी इजाज़त लेके चलती थी। एक समय था जब भारत माता की सांसें भी इजाज़त लेके चलती थी। जब खेत हमारा था लेकिन फसलें उनकी थाली में पसती थी। हमारी इज्जत, हमारी रोटी, हमारी इज्जत और हमारी रोटी, यहाँ तक कि हमारी हंसी भी कुचली जाती थी उन गोरे हुक्मरानों के पैरों तले। सड़कों पर उनकी हुकूमत की घमंड भरी गूंज थी। सड़कों पर उनकी घमंड भरी गूंज थी। कानून उनके थे, इंसाफ उनकी थी और सज़ा भी उनकी थी, लेकिन लोग हमारे थे।
जो आवाज़ उठी उसे कोड़े मार कर दबा दिया जाता था। जो आवाज़ उठी उसे कोड़े मार कर दबा दिया जाता था और जो सिर ऊंचा हुआ उसे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाता था। पर इस अंधेरे में भी एक चिंगारी भड़क रही थी। गौर से सुनो, इस अंधेरे में भी एक चिंगारी भड़क रही थी। कुछ आंखों में अब भी इंकलाब का सपना चमकता था। कुछ आंखों में अब भी इंकलाब का सपना चमकता था। कुछ दिलों में आज़ादी का गीत बेकाबू होकर गूंजता था। जंजीरों ने खनक अब तलवार की झंकार कैसी सुनाई देती थी। और हर कोड़ा हर गोली उस आग को और भड़का रही थी। गांव गांव में धीमी फुसफुसाहटें बगावत का बिगोल कर रही थी। युवाओं की मुट्ठियां कस रही थी और माएँ अपने बेटों को वीरता का दूध पिला रही थी। हर गली हर चौपाल पर देशभक्ति की मशालें चुपचाप जल रही थी। वो लपटें थी जो अब तूफान बनने के लिए तैयार थी। सीने में धड़कन नहीं, अब रणघोष गूंज रहा था। हाथों में कलम नहीं, अब तलवार झूल रही थी। आंखों में आंसू नहीं, अब बदले की चमक थी। और होठों पर डर नहीं, बस वंदे मातरम का ही स्वर था। हर धड़कन का संदेश जय हिंद वंदे मातरम ही था। उनकी लहू की हर बूंद में एक अध्याहन था। आज़ादी से बढ़कर कुछ नहीं, बस वंदे मातरम का ही सम्मान था। इसलिए कभी मंगल की तलवार चमकी तो कभी झांसी की रानी रन में दमकी। कभी मंगल की तलवार चमकी तो रानी की झांसी रन में दमकी। अब भगत ने भी हंसते हंसते फांसी को चूमा। तो कभी आज़ाद की बंदूक ने मौत को भी झुका दिया। गांधी ने नमक की मुट्ठी से ललकारा तो नेहरू ने अपने सपनों का भारत को संवारा। सरदार की लोह इच्छा ने सबको जोड़ा जिसका तो सुभाष ने तुम मुझे खून दो इसका बिगुल लगाया। वो लहू वो आंसू वो बलिदान मिलकर बने थे स्वतंत्रता का सम्मान। आज हम उस कर्ज के ऋणी हैं जिसका ब्याज भी हम पीढ़ियों तक चुकाएंगे। आओ प्रण ले कि उस धरोहर को कभी न खोने देंगे। भारत माँ के सम्मान को सदैव ऊंचा ही होने देंगे। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि दर्द उसे होता है आंसू मेरे बहते हैं। प्यार उसे किया जाता तो खुशी मुझे भी होती है। वो बोल नहीं सकती तो उसका आवाज़ बन जाऊंगा। वो देख नहीं सकती तो उसकी आंखें बन जाऊंगा। वो लड़ नहीं सकती तो उसका शस्त्र बन जाऊंगा। मैं भारत माता के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। By being inspired from his poetry, even I would like to say few words. टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालत से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। स्वतंत्रता दिवस को मनाने से हम अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पुनरावलोकन करते हैं और यह भी समझते हैं कि स्वतंत्रता के साथ आता है जिम्मेदारियों का भार। हमें अपने देश के विकास में योगदान देना चाहिए और उन वीर शहीदों की याद में उनके संकल्प को पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए। यदि कोई अपने देश आज़ादी या फ्रीडम फाइटर्स के बारे में कोई पोएट्री या कोई कहानी शेअर करना चाहता हो तो कर सकता है। जय हिंद एव्हरीवन। मी पायल दांगडे। मी कविता सादर करणार आहे। ते पहाट, जे पहाट आपण आजपासून 79 वर्षांपूर्वी आजच्या दिवशी जगत होतो। तो काळ जेव्हा सूर्य उगवायचा पण आपल्यावर अंधार उतरायचा, जेव्हा आकाश निळं होतं पण आपल्या मातीवर परक्याचं सावट पसरलेलं होतं।
गावाच्या चौकात सैनिकांच्या बुटांचा आवाज यायचा. गावाच्या चौकात सैनिकांच्या बुटांचा आवाज घुमायचा आणि कोणाचाही आवाज त्या पावलाखाली चिरडला जायचा. आईच्या हातातलं लेकरू भुकेने रडायचं, पण त्या आईच्या डोळ्यात त्या भुकेपेक्षा स्वातंत्र्याचं स्वप्न मोठं होतं. कोणीतरी जंगलात पळत पळत गुप्त संदेश द्यायचा, तर कोणीतरी रात्रीच्या अंधारात तिरंगा शिवायचा आणि कोणीतरी सकाळी फाशीच्या दोरीला आलिंगन घ्यायचा. मग आली ती 15 ऑगस्टची पहाट. पहिल्यांदा आपला तिरंगा आकाशात उडाला. पहिल्यांदा आपला राष्ट्रगीत आपल्या आवाजात गायला मिळाला आणि पहिल्यांदा गुलामगिरीच्या पलीकडला श्वास घेतला. आज आपण मोकळेपणानं चालतो, मोकळेपणानं बोलतो, पण त्या प्रत्येक पावलाखाली त्यांचा त्याग दडलेला आहे. म्हणूनच जेव्हा तिरंगा डोलतो तो फक्त कापड नसतो, तो आपल्या स्वातंत्र्याची, आपल्या इतिहासाची शपथ असतो. तो आपल्या रक्ताची ओळख असतो, आपल्या स्वातंत्र्याची शपथ असतो. जय हिंद. जय हिंद everyone. Happy Independence Day first of all. At the stroke of midnight hours, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. This historic word of Pandit Nehru remind us that 15th August 1947 was not just the end of British rule. It was the beginning of world's largest democratic journey. This freedom was not handed to us. It was earned through decades of sacrifices and courage. It was the movement that combined Mahatma Gandhi Ahimsa with Netaji Subhash Chandra Bose call, who say, "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा." It carried the fearless courage of Chandrasekhar Azad, who said, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे. These are not just words, they were fuel. They were fuel for a revolution, and while history remembers only these big names, we, as being the citizens, we should not forget the countless farmers, workers, women who give all without expecting to be remembered. But freedom is not just a memory of past. It's a living responsibility. Today, we face different kinds of battles. Corruption that eats into our system, misinformation that poisons our thoughts, and environmental crises that threaten our future, and social divisions that weaken our unity. We take pride in our scientific achievement, from Chandrayaan to Gaganyaan. But progress will be meaningless if we leave our village behind. Technology will only be blessings if we bring it in unity. Our democracy will only be strong if we vote with awareness, if we speak with respect and act with integrity. And that is why, as a citizen of free India, we must remember, आज़ादी का मतलब सिर्फ स्वतंत्रता नहीं, जिम्मेदारी भी है.